this is Lavanya Patel. Welcome to Inside News. Let's get into the details. External Affairs Minister S. Jaishankar emphasized the need to focus on opportunities abroad in light of the growing global workforce. He said, we must focus more on opportunities abroad due to the emergence of global workplace and workforce driven by demographic shifts. New technology demands cultural and work ethic compatibility and emphasize on trust of reliances. He added that these trends are influenced by changing social habits, innovating product strategies, strategic global competition, and insecurities brought by the COVID experiences. Then arises as to how that talent is nurtured, how it is expanded, deployed, and upgraded. Much of that obviously has to happen at home. And this has its own debates and discussions, including how best we accelerate manufacturing, whether technology can be generated without deepening our industrial culture, the optimization of agriculture and food processing, the support for self-employment, startups and innovation, and not least, the vistas opened up by our digital and AI future. Now, in all of that, the world can and does play a role. Foreign investment, collaboration and trade are some of the noteworthy dimensions. Outsourcing, understandably, also got its fair share of attention. More recently, there is, I would say, greater interest in the growth of global capability centers, GCCs, in India that take the quality of economic activity to a much higher level. However, while recognizing the value of all these endeavors, it is necessary that we also pay greater attention to opportunities beyond our borders. And the reason for that is the emergence of the global workplace with a global workforce. These are phenomena spurred by sharp demographic changes, demands of new technologies and their diffusion, compatibilities in culture and work ethos, as well as the premium put on trust and resilience in many fields. Each of these are an outcome of a particular trend in world affairs, whether it is social habits accompanying development, the impact and deployment of creative products and services, sharper strategic competition among major powers, or the insecurities from the COVID experience. Now, we are gathered here, all of us, to explore the opportunities for Indian talent in such a scenario. And I truly believe that these are significant enough to warrant greater attention and effort from all of us. There are currently roughly about 34 million Indians and PIOs living and working abroad. About half of them, again that's a very approximate figure, half of them are our citizens. Perhaps a third are located in the Gulf and the rest of them are spread across other geographies, mostly developed economies. However, given the trends that I spoke about, the possibility of expanding that even in the near term is very serious. Bear in mind that we Indians have also developed by now a strong history of employment exploration abroad. The issue then arises as to how that talent is nurtured, how it is expanded. Minister Parvesh Verma has alleged that Delhi is facing a water shortage because the Punjab government reduced water supply, possibly in relationships of APP's electoral defeat in Delhi. He stated since last week Delhi has been receiving less water due to Punjab government's decision to reduce the water supply. The Bakra Base Management Board reduced water release to Haryana, impacting Delhi supplies. दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से कम पानी आ रहा है। ये पानी कम इसलिए आ रहा है क्योंकि पंजाब सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली में उनकी हार हुई है उसका बदला दिल्ली की जनता से लेने के लिए उन्होंने दिल्ली का पानी कम कर दिया। अभी ये खबर आपने भी सुनी होगी कि बीबीएमबी से
जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोट है, एक बार वहां से जो पानी रिलीज होता था हरियाणा के लिए, उन्होंने उस पानी को कम किया। और ये जो मेरे पास में आंकड़ा है, दिल्ली में रोज जो हरियाणा से पानी आता था वो एवरेज 980 क्यूसेक पानी रोज हमको मिलता था। मगर एक हफ्ते से मैं आपको अगर बताऊं, 1 तारीख को हमारे पास में 88 क्यूसेक पानी कम आया, 2 तारीख को 119 क्यूसेक पानी कम आया, 3 तारीख को 71 क्यूसेक पानी कम आया, 4 तारीख को 55 क्यूसेक पानी कम आया और 6 तारीख 5 तारीख यानी कल 130 क्यूसेक पानी कम आया। यानी कि 980 में से 130 क्यूसेक पानी कम करना, यानी 15% पानी कल जो दिल्ली का हक है उसको कम मिला। क्योंकि पंजाब सरकार, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहते हैं। तो दिल्ली को छोड़कर पंजाब क्यों गए? क्योंकि जो दिल्ली की जनता के लिए उनके गुस्सा है कि दिल्ली की जनता ने मुझे हरा दिया, आम आदमी पार्टी के अंदर जो गुस्सा है, अब वो दिल्ली की जनता को प्यासा मारकर अपना बदला लेना चाहते हैं। मगर ये गंदी राजनीति चलने नहीं देंगे। अभी होम सेक्रेटरी ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा, ऑर्डर किए कि बीबीएमबी पर जो पंजाब पुलिस ने सारे डैम को वहां पर रोक लिया है, उसको खुलने नहीं दे रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी हटाएं। क्योंकि पंजाब पुलिस का वहां पर सिक्योरिटी देने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है। मगर पंजाब सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल के आदेश से वहां पर पानी रोक दिया है। हरियाणा को पानी कम मिल रहा है पिछले 10 दिन से, और उसी के नतीजे हमको भी दिल्ली को पानी कम दे रहे हैं। ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साजिश है, ये उसकी गुंडागर्दी है, ये उसका जो गुस्सा है वो दिल्ली की जनता के ऊपर में उतार रहे हैं। मगर वो भूल गए, इसी जनता ने उनको 10 साल तक मुख्यमंत्री बनाया। एक चुनाव हारने से आप दिल्ली की जनता का पानी रोक देंगे? मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, ये आपको शोभा नहीं देता। ऐसी गंदी राजनीति आप कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। दिल्ली की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। देखिए, दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते से कम पानी आ रहा है। ये पानी कम इसलिए आ रहा है क्योंकि Mumbai, Maharashtra's Congress leader Vijay Wadhwani lashed out the Maharashtra's government over its inaction following unseasonal rains and hailstorms. Farmers are suffering losses. If the government had not yet ordered any survey, this shows it is an unconstitutional government for farmers. They are in pain, crying, droning in debt, he said. Wadhwani added that Maharashtra has become the state with the highest number of farmer suicides and accused the government of being shameless in the face of the crisis. किसानों का जो नुकसान अभी बेमौसम बारिश से हो रहा है, ओले गिर रहे हैं, सरकार ने अभी तक इसका सर्वे करने का आदेश भी नहीं निकाला। इसका मतलब ये सरकार असंवैधानिक सरकार है किसानों के प्रति। किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, मुंह में आया निवाला छिना गया है, किसान रो रहा है। और जो रबी की फसल है पूरी खत्म हो चुकी है। बहुत सारा किसानों का आज संकट बड़ा खड़ा हुआ है। इस स्थिति में सरकार ने कम से कम, ये कंगाल सरकार है, कंगाल सरकार ने किसानों के प्रति तो थोड़ी दया दिखानी चाहिए। आपने किसानों को कर्जा मुक्ति की बात की और कर्जा मुक्ति भी नहीं दिया। आज किसान कर्जा में डूबा है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा किसानों का आत्महत्या करने वाला स्टेट बन चुका है। फिर भी इन लोगों को, राज्यकर्ताओं को थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि किसानों के प्रति दया नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि केवल खुर्ची उगाने के लिए इन्होंने सत्ता पाई है। सत्ता से संपत्ति करो और सत्ता का मजा करो, और किसान हो, बेरोजगार हो, महिला हो, उनके प्रति इनकी कोई आस्था दिख नहीं रही है। मेरी सरकार से दरखास्त है और आह्वान भी करता हूँ कि तुरंत पंचनामा का आदेश निर्गमित करे और इनको मुआवजा जो भी देना है सरकार घोषित करे। बहुत बड़ा नुकसान इस किसानों का हुआ है। नहीं, देखो,
किसानों का जो नुकसान अभी बेमौसम बारिश से हो रहा है, ओले गिर रहे हैं, सरकार ने अभी तक इसका Bhopal, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav announced the names of the state toppers in MP board 10th and 12th examinations. Prayag Jaiswal from Singrauli secured the top position in the class 10 exams with a perfect score of 500 out of 5. In the class 12 tragedy of Priyal Divani from the Santa Emergency of the state topper, the Chief Minister congratulated the students and praises their hard work and dedication. आनंद बढ़ रहा है। जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूं तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को, बेटियों को बधाई देता हूं। 10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रज्ञा जायसवाल। ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। मैं तो ये सोच के परेशान हूं और मैं उस बच्ची से जरूर मिलना चाहूंगा, आखिर करा क्या, कितना अच्छा लिखा होगा उसने कि 100% हमारे बच्चियों का रिजल्ट। यहाँ मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूंगा। दूसरी 12वीं से प्रज्ञा कहाँ से है अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगी। सिंगरौली, एकदम दूरस्थ हमारा अंचल है। और ये प्रियल कहाँ की है? ये सतना। एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल 12th द्विवेदी, ये 12th में टॉप कर रही है। इसको भी बधाई दे रहा हूं मैं। ये है सतना की 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई देता हूं। प्रियल द्विवेदी, ये भगवान राम चित्रकूट है और चित्रकूट के जिले वाली सतना से आने वाली बेटी है। तो लेकिन ये और आनंद बढ़ रहा है जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूं तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। 10वीं और 12वीं में Mumbai, Maharashtra reacting to the national-wide civic defence mock drill scheduled for tomorrow. Shiv Sena MP Sanjay Raut remarked that the sun drills such as unusual in a country like India, where war-like situations had occurred in the past, referring to the historical conflicts like 1971 war and the Kargil conflict. Raut emphasized that while communication was limited during those times, today's advanced system make it easier to guide the public. He stated that if the government was to conduct a mock drill, it is acceptable, but highlighting the importance of using modern communication tools to inform and prepare citizens effectively. पर दिख रहे हैं, कल मॉक ड्रिल होने वाला है, पूरी तैयारी है सरकार की। मॉक ड्रिल तो होती रहती है। जिस देश को जिस देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और जिस देश को युद्ध का अनुभव नहीं है, हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव है। कारगिल का युद्ध एक जगह पर हो गया था, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से मॉक ड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है। लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है, कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, एक दिन जो भोंगे बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। ये हमने 1971 में देखा है। उस वक्त तो कम्युनिकेशन के कुछ साधन नहीं थे, अभी है। आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे आपने कोरोना काल में किया था। कोरोना में युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था। भारत भूमि पर दिख रहे हैं, कल मॉक ड्रिल होने वाला है, पूरी तैयारी है सरकार की। Haridkot, Punjab. Former leader Jagit Singh Darwali has accused the Punjab and central government of suppressing democratic rights by preventing farmers from travel to Chandigarh and Delhi. Since yesterday morning, farmers have been arrested as Punjab government prevents us from travelling to Chandigarh and the central government blocks us from reaching Delhi. This is a violation of democracy, he said. पता है कि कल सुबह तो
SKM नॉन पोलिटिकल के आगू साहबान, KMM के आगू साहबान, सब के घर छापेमारी करके बहुत बड़ी गिनती आगू साहबाना गिरफ्तार किया गया है। किसी को घर भी डिटेन कर लिया, बहुतिया जेल भेज दिता गया। जिस तरह काके कोटड़े का पता लगे उन्होंने जेल भेज दिता गया, उन्होंने नाल दे साथियों। ईवन गल यह है कि जिस तरह की भगवंत मान बयानबाजी कर रहा है, उस बयानबाजी के जवाब के लिए सानू लोड़ है कि असी अज मौके के उत्ते उसकी उस गल का जवाब देईए कि असी लोकतंत्र देश के विच वसदे हां कि इस देश के विच साडे संविधान ने सानू अधिकार दिता होया है कि कोई भी व्यक्ति जदों किसी की गल मन्नी ना जाए, सरकार उन्होंने गल ना सुने। जिस तरह पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर किसानों को दुख नहीं दिता जा रहा, वड़ नहीं दिता जाता, उस तरह दिल्ली के अंदर किसानों को वड़ नहीं दिता जा रहा, तो इतने सवाल उठने सुभाविक है। ये प्रोटेस्ट होना, ये राइट लेना, इस राइट को बहाल करवाना जरूरी है और समय की लोड़ है। और बेइंसाफी के खिलाफ आवाज़ चुकने वाले लोगों को जेलों के थानों के बिना किसी गल तो बंद कर देना, ये मैनूं लगता लोकतंत्र का गला घुटन वाली गल की है भगवंत मान सरकार ने। और उस सरकार ने की है जिहड़ी सरकार जदों भगवंत मान जां मनीष सिसोदिया जां होर इन्हां दे आगूआं नूं जेल डक्कन दियां कोशिशां होईयां, घोटालियां फड़े गए, ये आए पार्टी खुद साडा देश साडी स्टेट का मुख्यमंत्री जाके दिल्ली दे विच धरने दिंदा रहा है। तो वो मुख्यमंत्री अज ये कहे कि धरना देना, प्रोटेस्ट करना ये या मतलब हड़ताल करनिया ये गैर संविधानक मन्ने जाएंगे, इन्हां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होएगी, ये अति निंदनयोग बयान है। और मैं कहना चाहना भगवंत मान नूं दस देना चाहना कि अज भावें तुसीं वड्डी पद्धर दे उत्ते किसान आगूआं नूं डिटेन किया है, लेकिन किसान वख-वख इलाकों चों, वख-वख ब्लाकों चों, जिलियां चों शंभू बॉर्डर के उत्ते फिर भी पहुँचणगे और आपकी गल रखने लिए जाएंगे और ये जाना बनता है। नाल मैं गल कहनी चाहना है कि कल तो लैके पत्रकारां ने 2-3 बार कोशिश की है मेरे नाल गल करन दी, मैनूं मिलण दी, लेकिन वो गल करन दा मौका नहीं दिता। ये बड़ी दुखदाई गल है कि किसी बंदे नूं पत्रकारिता की लाइन ते काम करने वाले लोगों नाल पत्रकारां नाल भी ना मिल देना, ताकि लोगों दे विच आवाज़ ना जाए, लोग ये गल ना दस सकन, कह सकन। तां एक तरह का होर भी बड़ा लोगों की, जिस तरह तुहानूं सारिआं नूं पता है कि कल Hapur, Uttar Pradesh, District Magistrate Abhishek Pandey has confirmed that Bharat Kashyap, a writer poet linked to the Shankari Gana Vikas Samiti, is under investigation for alleged financial disappropriate. According to an initial probe by the district cooperative officer, Kashyap is accused of diverting profits worth approximately 3 to 4 crore from the Samit's IDBM bank accounts in the bank accounts of the relatives. सहकारी गन्ना विकास समिति में बाबू, जिनके पास लेखाकार का भी अतिरिक्त चार्ज था, भारत कश्यप, इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की बात आज सामने आई है। इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर और समिति के चेयरमैन द्वारा मुझे ब्रीफ भी किया गया है। इसमें हुआ ऐसा है कि इनके द्वारा समिति के खाते को मैनिपुलेट करके समिति का जो लाभांश था, जो कि समिति के स्थापना और विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल होता, उसको अपने रिश्तेदारों के खातों में डलवाया गया। और अभी तक जो प्रारंभिक जांच दल गठित किया गया है डीसीओ के द्वारा, उसमें सिंभावली के हमारे लेखाकार और एचसीडीआई और सचिव को इस जांच में शामिल किया गया है। मेरे द्वारा पूछे जाने पर डीसीओ ने अवगत कराया है कि कल दोपहर तक जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। प्रथम दृष्टया इसमें भारत कश्यप द्वारा अपने रिश्तेदारों को समिति का लाभांश आईडीबीआई बैंक के खाते से ट्रांसफ़र किया जाना पाया गया है। और अभी तक जो गणना हुई है उसके हिसाब से लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास का ये गबन है। इसमें समिति के सचिव, समिति में जो एचसीडीआई हैं और आईडीबीआई बैंक के जो कर्मचारी हैं, उन सभी की भूमिका बेहद ही संदिग्ध प्रतीत होती है। और मेरी तरफ से डीसीओ को निर्देशित किया गया है कि कल प्रत्येक दशा में
2 बजे तक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि सभी संबंधित लोगों के खिलाफ, जिसमें हमारे समिति के कर्मचारी या फिर शासकीय कर्मचारी, आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी जिनके द्वारा इसमें सहयोग किया गया भारत कश्यप को, और भारत कश्यप के सभी रिश्तेदार जिनके खातों में अनुचित तरीके से पैसा पहुंचाया गया है, उन सब के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इसमें जो सचिव और एससीडीआई हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाए। इससे एक तरफ तो जहां पे उन्होंने जो अपराध किया है उसकी सुसंगत सजा उन्हें दिलाने में मदद मिलेगी, और पैसे की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए भी डिपार्टमेंट से लिखने को कहा गया है, जिससे कि जल्द से जल्द पैसे की रिकवरी भी वापस समिति के खाते में सुनिश्चित की जा सके। देखिए, अभी तो 4 सदस्यीय जांच टीम डीसीओ द्वारा गठित की गई है, जो कि कल दोपहर तक रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर देगी। जी, ये समिति के सचिव द्वारा कल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की बात सामने आई है, और इसमें मैं एसपी साहब से बात कर ये इंश्योर करूंगा कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को ट्रेस किया जा सके। Meerut, Uttar Pradesh, a 90-year-old couple, Subhash and his wife, were robbed at gunpoint at his home in Hara village under the Sarurpur police station area on the night of April 11-12. According to SP Rural Meerut Rakesh Sharma, the robbers entered through the back door, threatened the elderly couple with a pistol, and looted 30 grams of gold jewelry including a ring and necklace, rupees of 4,000 in cash and Nokia phone. दिनांक 11-12 अप्रैल की रात में थाना सरूरपुर क्षेत्र में कस्बा हर्रा है, वहाँ के निवासी सुभाष नामक व्यक्ति हैं जो जिनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है, काफ़ी बुजुर्ग दंपत्ति हैं। ये लोग अपने घर में थे तो रेकी के बाद, हालांकि घर बाहर से बंद था, पीछे के रास्ते से कुछ लोग आए और इनके यहाँ से ईयर रिंग और जो हाथ की रिंग होती है और गले का हार, 4,000 रुपये, नोकिया का फ़ोन लूट के ले गए थे। और इसमें डराने के लिए तमंचे का भी इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया था। प्रकरण में थाना सरूरपुर पुलिस के द्वारा आज कार्यवाही करते हुए इस घटना में शामिल प्रारंभ से लेकर अंत तक जो लोग शामिल रहे, कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से जो गया हुआ सोना था, चूँकि वो ज्वेलरी जिसने ख़रीदी थी उसके द्वारा गला दिया गया था, लेकिन पूरी मात्रा जो 30 ग्राम है वो बरामद किया गया है, और एक तमंचा, कुछ कारतूस बरामद किया गया है। घटना में जो लूट में गया हुआ 4,000 रुपये था वो बरामद किया गया है, और जो नोकिया फ़ोन इनका गया था वो बरामद किया गया है, और इन लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। इसमें जो व्यक्ति शामिल थे वो थाना सरूरपुर क्षेत्र के हर्रा के ही निवासी थे, और इन लोगों ने इनमें से एक का आपराधिक इतिहास भी है पहले का, और बाकी जो ये थे इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये आगे अपना जो विलासितापूर्ण जीवन शैली है उसके लिए काफ़ी प्लानिंग करके ये काम कर रहे थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक 4 व्हीलर इनकी खरीदने की आगे प्लानिंग थी। ये जो पूछताछ में इन्होंने बताया है वो स्कॉर्पियो S11 की बात कर रहे हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया था, चूँकि वो काफ़ी बुजुर्ग दंपत्ति हैं, तो इसमें एक जो अपराधी है इमरान, उसने उनसे आशीर्वाद भी लिया था, ऐसा पूछताछ में उसने बताया। तमंचे का डराने के लिए इस्तेमाल किया गया था घटना में। ये दिनांक 11-12 अप्रैल की रात में थाना सरूरपुर क्षेत्र में कस्बा हर्रा है, वहाँ के निवासी सुभाष नामक व्यक्ति हैं जो जिनकी उम्र 90 साल। Mumbai, Maharashtra, reacting to controversy surrounding the film Pule, NSP, SSP, MLA Jitendra out to defend the portrayal of historical events, stating promoting any truth is not certainty. If some people from particular community draw dung at Savitribai and then there's no flashhood is that remains. His remarks come amid debates over the film's depiction of caste-based discrimination. कोई सत्य प्रमोट करना कोई कास्टिज्म नहीं होता है। अगर एक विशिष्ट समाज के कुछ लोगों ने सावित्रीबाई को गोबर मारा तो मारा, उसमें झूठ बात तो नहीं है। चित्रपट के शुरू में ही जो डिस्क्लेमर आता है, जो उनकी प्रतिज्ञा जो लिखा आता है, उसमें उन्होंने कहा है कि संशोधन और ऐतिहासिक दाखले का अभ्यास करके हमने ये चित्रपट का निर्माण किया है, उसमें झूठ कुछ भी नहीं है। और हमको भी मालूम है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये देखा है। अछूतों के लिए पहली लड़ाई अगर ब्रिटिशों के दरबार में जाके किसी ने लड़े तो महात्मा ज्योतिबा फुले थे। भिड़े साहब ने उनको वाड़ा दिया पढ़ाने के लिए, पर बम्बों ने जाके वो भिड़ों को ही धमकाया तो बंद हो गया। तो पहली बार अपना घर किसने खोल के दिया?
उस आदमी का नाम था उस्मान भाई। अपनी बहन फातिमा को सावित्री के साथ किसने दिया? उस्मान भाई ने दिया। और स्कूल किसने चलाई? सावित्री और फातिमा ने मिलकर। यह सच्चाई आज के जमाने में लोगों तक जाने की जरूरत है। जब समाज फिर से उस पुराने दौर में जा रहा है तो यह सच्चाई भी सामने लानी पड़ेगी। ये समाज को बदलने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया तो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने किया। और उनको सबसे बड़ी सहायता किसने दी? तो उस्मान भाई और फातिमा ने। और हम भिड़े साहब को भी भूल नहीं सकते कि पहली बार अगर शिक्षा के लिए अपने घर किसने खोले तो भिड़े ने खोले। लेकिन भिड़े जी को धमकाया गया ब्राह्मणों द्वारा कि तुम्हारा घर ही जला डालेंगे। तो खुद सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले ने निर्णय लिया कि आपके घर में हम ये खोल के आपको बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये सत्य क्यों नहीं हम बताएंगे? लहूजी साल्वे, ये बहुत कम लोगों को इतिहास मालूम है कि लहूजी साल्वे बड़े पहलवान थे और उनको डरते थे लोग। जब लोगों ने इनके ऊपर दबाव लाया कि हम दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर दबाव लाया कि लड़कियों को स्कूल में मत भेजो, तब अपने बच्चे लेके, अपने पहलवान लेके लहूजी साल्वे खड़े रहे कि बच्चियों को निकलो और स्कूल भेजो। तो ये क्रांति की जो जोत जलाई गई थी वो लोगों तक जाने दो। उसमें क्या क्या उसमें सच्चाई को छुपाने में क्या क्या आनंद? सच्चाई देखने दो लोगों को। देखो, ऐसा है कि मैं जब से जानता हूं महाराष्ट्र सरकार किसकी भी हो, लेकिन कैंची चलाने का काम तो पिछड़ों का ही होता है। पिछड़ों का ही निधि काटा जाता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और मैं सालों से देखते आ रहा हूं, सालों से चिल्ला रहा हूं कि पिछड़ों का ही निधि काटने का काम क्यों करते हो? काटने का है तो इरिगेशन का काटो, काटने का है तो पीडब्ल्यूडी का काटो, काटने का है तो एमएसआरडीसी का काटो। जहां से तुमको कमीशन मिलता है उसके निधि काटो ना भाई। देखो, ऐसा है, कोई सत्य प्रमोट करना है, कोई कास्टिज्म नहीं होता है। अगर एक विशिष्ट समाज के कुछ लोगों ने सावित्री बाई को गोबर मारा तो मारा, उसमें झूठ बात तो नहीं है। चित्रपट के शुरू में ही जो संशोधन और ऐतिहासिक दाखले का अभ्यास करके हमने ये चित्रपट का निर्माण किया है, उसमें झूठ कुछ भी नहीं। और हमको भी मालूम है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये देखा है। Indore, Madhya Pradesh. Responding to UP Congress President Ajay Rai's resident remarks, Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayagiri said, Ajay Rai has been continuously losing. When a person keeps losing, they go into frustration. When they go into frustration, such statements are made. His comments come amid a war of words between BJP and Congress leaders. Ajay Rai लगातार हार रहे हैं। लगातार जब आदमी हारता है ना तो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, और फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है तो इस प्रकार के बयान देता है। जब इस प्रकार के बयान देता है तो उनकी मूर्खता पर अब कोई मैं बयान दूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका बयान कोई समझदार आदमी तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान के ऊपर क्या रिएक्शन देना? देखिए, बांग्लादेश के हालात चिंताजनक तो है और हमारी सरकार उसके ऊपर गंभीरता से विचार भी कर रही है और चर्चा भी कर रही है। देखिए, अजय राय लगातार हार रहे हैं। लगातार जब आदमी हारता है ना तो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, और फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है तो इस प्रकार के बयान देता है। जब इस प्रकार के बयान देता है तो उनकी मूर्खता पर अब कोई मैं बयान दूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका बयान कोई समझदार आदमी तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान के ऊपर क्या रिएक्शन देना? देखिए, बांग्लादेश के हालात चिंताजनक तो है और हमारी सरकार उसके ऊपर All India Imam Association Chairman Maulana Aziz received a strong reaction to the recent tensions between India and Pakistan, stating, "We are not Pakistan, who get sacked by threats, who have tested us 100 times. These threats are a result of their deception. They know that if India starts an attack, Pakistan will be wiped out completely." These remarks reflect growing public sentiment amid escalating cross-border rhetoric. धमकियों से डरने वाले पाकिस्तान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये धमकियां उसकी भोखलाहट का नतीजा है। उनको पता है कि हिंदुस्तान ने अगर एक बार आक्रमण शुरू कर दिया तो पाकिस्तान सफाई हस्ती से मिट जाएगा, दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। हम तो अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को निमटने के लिए हम काफ़ी हैं।
सरकार हमें इमामों को इजाजत दे, हम बॉर्डर पर जाकर उनके साथ लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये जो आतंकवाद कर रहे हैं जिहाद के नाम पर, इनकी वजह से हम हिंदुस्तान में रहकर परेशान हैं, हम बदनाम हो रहे हैं। This is the wrap of the bulletins. For more news updates, stay tuned to